اہتمام کرتی ہے اس عورت کے بارے میں کہا گیا ہے ایسی عورت کو جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، بلایا یہ کہہ کر بلایا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، آئیے او میری بہنوں، اس زمانے کی عورتیں روزہ رکھنے کا جذبہ کتنا رکھتی تھی، دین کا کام کرنے کا جذبہ کتنا رکھتی تھی۔ ایک عورت شکایت لے کر اللہ کے رسول کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، میرا شوہر جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا شوہر روزانہ مجھے مارتا ہے، روزانہ مجھے پیٹتا ہے، جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا شوہر مجھے مارتا ہے، میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا شوہر روزہ توڑوا دیتا ہے۔ وہ شکایت لے کر آئے، اللہ کے رسول نے کہا تمہارا شوہر کون ہے؟ کہا میرا شوہر فلاں ہے۔ ان کو اپنے قریب بلایا اور ان کو اپنے ارد گرد بٹھا دیا اور اللہ کے رسول نے پوچھا اے فلاں، تمہاری بیوی نیککار ہے، تمہاری بیوی دیندار ہے، تمہاری بیوی نمازی ہے، تمہاری بیوی روزے دار ہے، تم اپنی بیوی کو کیوں مارتے ہو؟ جب وہ نماز پڑھتی ہو تو کیوں مارتے ہو؟ ارے وہ جب روزہ رکھتی ہو تو تم کیوں توڑوا دیتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا، اس آدمی نے کیا جواب دیا وہ سنیے۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، ان عورت سے پوچھئے، میری بیوی سے پوچھئے کہ ان کو میں کب مارتا ہوں، میں کب مارتا ہوں؟ اس عورت نے کہا میں نماز پڑھتی ہوں، نماز میں کافی وقت لگ جاتا ہے، ایک سورہ کے بجائے دو دو سورت میں پڑھتی ہوں، یعنی میں لمبی نماز پڑھتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اے عورت، نماز میں ایک سورہ کافی ہے، کفایت کر جائے گی، تم لمبی نماز پڑھتی ہو۔ ارے نماز میں 3 آیت بھی کافی ہے، ضرورت کے تحت 3 آیتیں پڑھ کر بھی نماز پڑھ لو، نماز ادا کر لو۔ لیکن وہ عورت لمبی کر کے نماز ادا کرتی تھی، 2 لمبی لمبی صورتیں ادا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم اس لیے مار رہے ہو؟ کہا میں اس لیے مار رہا ہوں کیونکہ میں ابھی نوجوان ہوں، میں ابھی جوان ہوں اور مجھ سے صبر نہیں کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ جلدی بستر پر آ جائے، لیکن یہ جب نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے تو رات کی آخری حصہ گزر جاتا ہے، رات کی تہائی حصہ گزر جاتا ہے۔ جب بھی میں ان کو اپنے قریب بلاتا ہوں، اپنے بستر پر بلاتا ہوں، اس واقعے کو غور سے سنیے گا، میں صحیح سے اس کو سمجھاؤں گا نہیں، تشریح نہیں کروں گا، لیکن آپ سمجھیے۔ اے اللہ کے رسول، میں ابھی جوان ہوں، میں صبر نہیں کر سکتا، میں زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس کو اپنے قریب بلا رہا ہوں کہ میری بیوی جلدی جلدی نماز ادا کر لو اور میرے پاس آؤ، بستر پر آؤ۔ لیکن میری بیوی نماز کا اتنا جذبہ رکھتی ہے، اتنا دینی جذبہ رکھتی ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے آدھی رات گزار دیتی ہے۔ اچھا روزہ کیوں توڑواتے ہو؟ کہا میں روزہ اس لیے توڑوا دیتا ہوں، میری بیوی نفلی روزہ رکھتی ہے، جب بھی میں کہتا ہوں او میری بیوی آج میں تم سے دن میں ملنا چاہتا ہوں، آج میں تم سے دن میں ملوں گا، او میری بیوی میرے پاس آؤ، بستر پر آؤ، میری بیوی کا جواب یہی آتا ہے میرے شوہر آج میں نفلی روزہ سے ہوں۔ اللہ کے رسول ایک دن میں برداشت کیا، دوسرا دن کیا، تیسرا دن کیا، چوتھا دن کیا، 5واں دن کیا، میری بیوی کا معمول ایسا ہی رہا، میری بیوی کا دستور ایسا ہی رہا۔ اللہ کے رسول بار بار میں وہی الفاظ کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی جوان ہوں، برداشت نہیں کر سکتا، مان کے چلیے نئی شادیاں ہوئی ہے، ابھی مجھے اس کی سخت ضرورت ہے، نفلی روزہ کی بات کر رہا ہوں، اتنا یاد رکھے گا میرے بھائیوں۔ تب کہتا ہے کہ تم نے صحیح کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ کوئی بھی عورت لا تصوم المرأہ، کوئی بھی عورت روزہ نہ رکھے، لا تصوم المرأہ، کوئی عورت روزہ نہ رکھے، کس حال میں؟ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ، اس حال میں کہ ان کا شوہر گھر میں موجود ہو۔ نفلی روزہ کی بات کر رہا ہوں، پھر ایسا نہیں کہ فلاں نے منع کر دیا روزہ رکھنے سے، رمضان میں بھی روزہ نہ رکھو، نفلی روزہ کی بات کر رہا ہوں۔ لا تصوم المرأة وبالها شاهد الا باذنہ، کوئی عورت روزہ نہ رکھے،
नफली रोजा ना रखे इस हाल में कि उसका शौहर घर में मौजूद हो। हाँ, अगर रखना चाहे अपने शौहर से इजाज़त ले ले, अपने शौहर से परमिशन ले ले, और मेरे शौहर आज मैं रोज़ा रखना चाहती हूँ, आज मैं नफली रोज़ा का एहतमाम करूँगी, आज मैं नफली रोज़ा रखूँगी। मेरे प्यारे साथियों, बताने का मकसद ये है कि अगर आप नई नई शादियाँ किए हैं या आपको जज्बात कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो आपकी बीवी से आपको उतना ही काम लेना होगा और आपकी बीवी को आपकी बात मानना पड़ेगी, और उस औरत को भी इतना ख्याल रखना होगा कि हाँ, मेरे शौहर को मुझसे मतलब है, मेरे शौहर को मेरी ज़रूरत है। इसलिए नमाज को मुख्तसर पढ़े और नफली रोज़ा का अगर एहतमाम करे तो अपने शौहर से पूछ ले। बताना ये चाहता हूँ कि वह सौमत शहरहा, ऐसी औरत जो रमज़ान के रोज़े का एहतमाम करे। अगर यहाँ मैं नफली बताया इसलिए कि औरत को ये जज्बा हो जाए, कम से कम नफली नहीं रमज़ान का तो रखें। अब आइए तीसरी चीज़, वातात ज़ौजहा, शौहर की इताअत करें। शौहर की इताअत से मतलब, शौहर अगर बीवी से कहो मेरी बीवी मैं 2-4 दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ, तुम मेरे इन माल की हिफाजत करना, बीवी की जिम्मेदारी है कि वो माल की हिफाजत करें। हदीस के अल्फाज है कि शौहर अगर बीवी को इस हाल में बुलाए अपने बिस्तर पर, बीवी को अगर ऊँट के कजाबे पर भी बुलाए तो बीवी को शौहर की बात मानना पड़ेगी। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुझे मेराज कराई गई, मुझे जहन्नम दिखाई गई, जन्नत दिखाई गई, तो जहन्नम में मैंने सबसे ज़्यादा जलती हुई औरत को देखा। एक मर्तबा ईद की नमाज के लिए ईदगाह तशरीफ ले जा रहे थे, कुछ औरत को आपने रास्ते में देखा, आपने फौरन मुखातब करते हुए फरमाया, या माशरन निसाई, आए औरतों की जमातो, तसद्दक ना, तुम लोग सदका किया करो। किस लिए? इसलिए कि फ़इन्नी उरीतुकुन अक्सरा मिन अहलिन नार, मैंने जहन्नम में तुम सबको सबसे ज़्यादा जलते हुए देखा है। उस दौर में जो सहाबियात है, उस दौर में जो औरतें थी, मेरी माँ व बहनों, क्या जज्बा थी, दीन सीखने का कितना जज्बा था, दीन सीखने का कितना ज़ौक़ था, कितना जज्बा था। अल्लाह के रसूल से सवाल कर लिया, कुल्ना व बीमा या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल, जहन्नम में सबसे ज़्यादा जलती हुई औरत को आपने देखा है, वो औरत कौन है, वो औरत किस किस्म के है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तकसुरनल्लान व तकफुरनल अशीर, वो औरत जो सबसे ज़्यादा लान तान करती है, हमेशा मुँह चलाती है, जहाँ देखो वहाँ से उनकी आवाज़ें आती है। अल्लाह के रसूल ने आवाज़ को भी पर्दा कह दिया है। वो मेरी बहनों, जहाँ ज़रूरत पड़े वहीं पे आवाज़ को इस्तेमाल करो। वो मेरी औरतों, मेरी बहनों, जहाँ ज़रूरत पड़े वहीं जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 8 साल से कटिहार की सरजमीन पर रहता हूँ, अभी बनारस में रहता हूँ, लेकिन बानिस्बत सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर्दा वाली औरत मुझे नज़र आया तो मेरे ही इलाके में, किशनगंज इलाके में पर्दा नज़र आया। यहाँ की औरतों के अंदर तहजीब नज़र आई। अब कटिहार वाले ही सोचते होंगे कि जहाँ जाता वहाँ उसकी तारीफ करता है। नहीं, मैंने कटिहार में कुछ इलाके देखा, वहाँ औरतें खुलेआम बाजार करती है। मर्दों से जब मैंने पूछा तो कहा, यह हमारे यहाँ धंधा चलता है, रीति रिवाज है, मर्द काम में रहता, औरत चौक चौराहे में चली जाती है। मेरी औरतों, खाने में कुछ कमियां हो जाए, नमक खाने में अगर कमी हो जाए, लेकिन बाजार का कस न करना, अगर जाना ही तो अपने शौहर के साथ जाना, लान तान ज्यादा न करना। जहाँ पर देखो, हाँ, अल्लाह के रसूल का जिक्र किया करो, जहन्नम और जन्नत का तज़किरा किया करो, जहन्नम से पनाह मांगा करो और जन्नत तलब किया करो। वह तकफुरनल अशीर, और अपने शौहर की जो लोग नाशुक्री करते हैं, अपने शौहर की जो लोग नाशुक्री करते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐसी औरतों को जहन्नम में देखा सबसे ज्यादा जलती है। नाशुक्री का मतलब यह है
मेरे भाइयों, आपने अपनी बीवी को जिंदगी भर 60 साल 50 साल जिंदगी में कपड़ा ला कर दिया, खाना ला कर दिया, लेकिन अगर आपकी बीवी नेक है, आप बीमारी में मुब्तला हो गए, आप बीमारी में मुब्तला हो गए, आपके पास इनकम नहीं आ रहा है, आपके पास अभी दौलत नहीं आ रही है, आपकी बीवी अगर सब्र करती है तो उनके लिए जन्नत है। आपकी बीवी अगर सब्र करती है तो आपकी इताअत करती है, आपकी फरमाबरदारी करती है। लेकिन मैंने कुछ औरतों को इस हाल में भी देखा कि अगर एक टाइम का खाना ना मिला, अपने शौहर की तमाम बुराइयां निकाल देती है पड़ोसी के सामने। अरे मेरे शौहर के बारे में क्या पूछ रहे हो, मेरा शौहर तो एक टाइम का खाना देता तो दूसरे टाइम का नहीं, आज एक कपड़ा ला कर दिया तो 6 महीना नहीं देगा, पहले से उनको पता रहता है। ऐसी औरत को बारे में कहा गया ये अपने शौहर की नाशुक्री करते हैं। मेरी बहनों, अगर कुछ दुनिया में कमियां हो जाए बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अपने शौहर की इताअत ना करना, शौहर की इताअत करते रहना, शौहर की नाफरमानी ना करना, शौहर की नाशुक्री ना करना। जानते हो शौहर का कितना बड़ा मकाम है। दुनिया में सबसे अगर बड़ी कोई चीज़ है तो वो सजदा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुनिया में अल्लाह के अलावा सजदा अगर किसी को जायज़ होता, मैं औरत को हुक्म देता कि वो सजदा अपने शौहर को करे। बताना ये चाहते कि शौहर का मकाम कितना है, शौहर का मर्तबा कितना है। मेरे भाइयों, हमारी बहन यही कहेंगे कि आज औरतों के ही खिलाफ बयान कर रहे हैं। नहीं, मर्दों की भी जिम्मेदारी है कि मर्द जो पहने औरत को भी वही पहनाए, जो खाए वो औरत को भी खिलाया। वैसा नहीं कि एक जगह पे मैंने ये बात कह दी कि मर्द जो पहने औरत को भी पहनाए, तो एक मौलवी साहब खड़ा हुआ जलसा ख़त्म होने के बाद, कहा एक काम करते हैं मौलवी साहब, मेरे पास 2-3 कुर्ता है पंजाबी का, 2-3 को मैं छोड़ दिया हूँ घरों में, वो मेरी बीवियाँ पहनेंगी। तो मेरे भाइयों ऐसी बात नहीं है कि आप जो पहन रहे वो पहना, मतलब आप जिस किस्म के जिस मायार के कपड़े पहन रहे हैं, जितना रुपया वाला कपड़ा आप पहन रहे हैं, उतनी ही रुपया वाला कपड़ा आप अपने बीवी को भी पहनाइए, और जिस किस्म के खाना आप खा रहे हैं अपने बीवी को भी खिलाइए। आप ऑफिस में रहते हैं, आप दुनिया भर में घूमते हैं, कितना खाते नहीं खाते आपकी बीवी देख नहीं पाते हैं, आप अपनी बीवी को भी खुश करने के लिए कुछ लाइए। शरीयत मना नहीं कर रही है, शरीयत ये भी कहती है शौहर अगर अपने हाथ से लुकमा उठाकर अपने बीवी के मुंह पर डालता है, बीवी को खिलाता है, इसमें भी सवाब है, इसमें भी नेकी है। शरीयत ने सारी चीज़ों का हल बता दिया। तो किस औरत के बारे में कहा गया, किस किस्म के, जो नाशुक्री करते हैं। मेरी बहनों, आज के बाद से आपको नसीहत कर रहा हूँ कि आप अपने शौहर की नाशुक्री नहीं कीजिएगा। शौहर का मकाम बहुत बड़ा है। तो जिस किस्म के कपड़े पहने उस किस्म के आप भी कपड़ा पहने, जिस किस्म के खाना खा रहे हैं वो भी खिलाइए। एक मरतबा लालू जी से, आप जानते हैं लालू जी कौन है, उनसे मीडिया वाले ने या फिर मजलिस वाले ने पूछ लिया कि लालू जी आप अपनी बीवी को क्या खिलाते हैं। अरे भाई, ये मीडिया वालों का काम होगा कि वो लोग ये भी पूछ लेते कहाँ खाते हैं, क्या खाते हैं, खाते तो किस तरह खाते हैं।